try to break those stigmas. The whole purpose behind arranging these workshops is so that people get comfortable talking about those things which they hesitate to talk about it. So we are on 19th episode today, and all right, so I'm the founder and CEO, and I'm in this field for about 8 years now. I've done my master's from Beacon National University in clinical and counseling psychology, and I have experience of more than 2 years of providing impactful workshops in educational institutions, in corporate staff, as well as in online setting. And this is the first time that I've conducted this series where I have basically organized or arranged different speakers coming from different background and providing a platform for them so that they also get the chance to speak and to share their insights. I'm also thankful to our sponsors, Wellbeing Hub, Reprotect You, and Amna Ansari. I believe it's really important to thank them that they have been, been able to promote this series, and they have been very supportive throughout. So thank you so much to our sponsors as well. And last but not the least, we have our amazing, wonderful speaker, Fatma Maqsood. She's an undergraduate student of applied psychology, and she's also currently working as a creative head at the Wellbeing Hub. And I believe मेरा जो Wellbeing Hub के साथ जो relation है, it has been ongoing और बड़ा अच्छा हमारा जो है ना जितनी भी हमने workshops की हैं, collaborations की, it has been very good. So Fatma, thank you and welcome to Teen Therapy Wellness Opening Mind Series as well. And I hope कि आपका आज का experience भी fruitful रहेगा. Thank you so much to all the participants as well who have taken out their time and to be here. She will be talking about sibling rivalry or trauma, hidden conflicts in joint families. And ये भी एक ऐसा topic है जो काफी लोग relate कर पाते हैं, but no one talks about it. इस चीज के बारे में इतनी बात नहीं की जाती है. So today Fatma will be shedding light on this thing कि is it a trauma, क्या है sibling rivalry और किस तरह से इसको resolve किया जाए. So thank you so much. It's our honor to have you with us today. Over to you, Fatma. Fatma, you are unmuted. Am I audible to everyone? Yes. Yes. Okay, thank you so much, ma'am, for such a warm welcome and introduction. I'm truly honored to be a part of this series. I think that this is a brilliant initiative जो आपने लिया है, Opening Mind series, and this is so important. It's so important to create a safe space for everyone to talk about such issues, क्योंकि बातें तो है बहुत करने की, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई हमें सुने, हमें accept करे. So I think this is a wonderful initiative taken by you, and I am truly honored to be a part of it. Thank you so much for arranging this for everyone, and thank you so much to all the participants as well, जो लोग join कर रहे हैं. And I really hope कि इस छोटे से session से आप लोग कुछ ना कुछ नया सुन के जाएं, कुछ नया सीख के जाएं, या मैं आप लोगों से कुछ सीख के जाऊं, and we can make this a two-way communication and hopefully learn a lot from it. So should I share the screen? Yes, Fatma. The floor is all yours now. Thank you. Okay, is the screen visible to everyone? Okay, perfect. So we'll start now. तो सबसे पहले हमारा तो जो टॉपिक है वो एक बहुत ही मजे का टॉपिक है, जिसमें जो है अंडरस्टैंडिंग सिबलिंग राइवलरी एंड ट्रॉमा इन पाकिस्तानी हाउस. हमारे 2-3 बहन भाई तो होते ही हैं हर घर में, और सिबलिंग्स आर so important in your life. I personally believe कि आपके माँ बाप से ज्यादा, आपके हस्बैंड से ज्यादा, वाइफ से ज्यादा, आपके किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रिलेशनशिप होता है, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में बनता है, वो होता है आपका सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप. इवन स्टडीज शो कि
by the age of 15 we have spent more time with our siblings than we will ever with our parents. हम इतने ज़्यादा अपने siblings के साथ time spend करते हैं, so that really shapes our personality. It really shapes who we become as people when we grow up. और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जब मुझे कहा गया कि मुझे कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है, दिस आई पिक दिस वन बिकॉज दिस वाज वेरी पर्सनल टू मी, और मैं इससे खुद काफी रिलेट कर पाती हूँ. मुझे लगता है आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे, तो मैं इस पर पर्सनली बात करना चाहती थी. अच्छा, तो हमारा एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो है ट्रॉमा के बारे में, व्हेन वी हियर द वर्ड ट्रॉमा, हमारे जहन में आता है मारपीट, अब्यूज, निग्लेक्ट. वी थिंक दिस इज ट्रॉमा एंड विच इट इज, बट ये हमें लगता है कि ये जो छोटी मोटी बातें होती हैं, जब आप रो रहे हो और आपको कोई चुप नहीं करा रहा, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली ट्रॉमा. व्हेन यू जब दो बहन भाइयों में लड़ाई होती है एंड देन दे start talking to each other without actually talking about the real problem जिसकी वजह से लड़ाई हुई, that is also something that can be traumatic for some people. तो trauma जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत grand हो, बहुत major हो to classify as trauma. बाज़ औक़ात वो छोटी मोटी नोक झोंक, वो subtle cues, वो एक unspoken sense of competition between siblings, that can also manifest as trauma, and it can deeply impact our relationships in our life in the future. अब rivalry जो है, it comes in many shapes and forms. It's not necessarily कि आप एक दूसरे को sabotage कर रहे हो या आप बदले ले रहे हो, but it can also be ये बार बार अपने बहन भाइयों को तंग करना, tease करना out of jealousy या out of competition. That also classifies as rivalry. So मैं पूछना चाहूंगी कि आप सब में से, you can just raise your hand or unmute your mic and tell me. बट आप लोगों में से किस किस ने ये चीज सिबलिंग राइवलरी एक्सपीरियंस की है पर्सनली? Yes, please, you may speak, Azmat Khan. Okay, I'm reading someone's comment. मैंने नहीं की. Yes, please go ahead. मैंने फेस नहीं की, मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ इस चीज़ को, और वो ये है कि मेरे बड़े भाई हैं और मैं दूसरे नंबर पे हूँ, और मेरी बहनें जो हैं वो भी मुझसे छोटी हैं. तो पहले ये सीन था कि एजुकेशन सेटिंग में मैं अपने भाई से थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो वो उस वजह से मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा अपने भाई की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सामना रहता था, क्योंकि मेरे टीचर्स जो थे वो मुझे कहते थे कि आपके बड़े भाई हैं, वो पढ़ते नहीं है, आप लोग क्या करते हो? तो बाद औक़ात मैं बता देता था कि वो भई उन्हें होमवर्क क्यों नहीं आता, कि वो घर में फ्री रहते हैं या इस तरह से. अब जब रिज़ल्ट कम आए, और आपको पता है विलेज लाइफ़ में गाँव वालों को इतना नहीं पता होता कि रिज़ल्ट्स वगैरह क्या है, तो वो घर पे अगर झूठ बोलते और मैं सच बता देता, तो इसका भी बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो जाता. तो इस तरह से वो मुझे अक्सर वो कॉन्फ्लिक्ट अपने भाई की तरफ से फेस करना पड़ता था. अब मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया कि मेरे अब्बू की डेथ के बाद अब मेरे घर के जो सरबराह हैं वो मेरे बड़े भाई हैं. तो अब वो पहले की निस्बत मुझे ज़्यादा उनकी तरफ से रिवलरी का सामना करना पड़ता है. Okay. First of all, I'm really sorry about your father's loss. और secondly, आपने बिल्कुल जो ये बात की कि ये सिर्फ बचपन में नहीं होता, ये एडल्ट रिलेशनशिप्स में भी सिबलिंग राइवलरीज चलती रहती हैं. कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर इनसिक्योरिटी कोई रह जाती है अपने सिबलिंग से रिलेटेड, या वो बेसिकली द प्रॉब्लम इज सिबलिंग राइवलरी में कहीं ना कहीं देयर इज अ रूट कॉज. देयर इज कोई भी लड़ाई, कोई भी राइवलरी बिला वजह नहीं होती. देयर इज ऑलवेज समथिंग बिहाइंड इट. इसके बारे में हम मजीद डिटेल में आगे बात करेंगे जब मैं सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगी कि हाउ वी कैन डील विद दिस. I would like to read the chat box जिसमें I'm seeing a lot of responses. Okay, your sister, somebody said that their sister competes with them. वो नहीं करती. Okay. My cousin's son recently shared his traumatic experiences with me. Cousin rivalry. अच्छा, ये भी बहुत interesting चीज है. Cousin rivalry. That is also a very huge part in our society because हम एक पाकिस्तान जो है वो एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है. हमारे घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, कजन्स भी साथ रह रहे हैं, मामू चाचू ताई चाची, वो फिर उनके बच्चे भी होते हैं, फिर सिबलिंग्स से बढ़ के वो और कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स हो जाते हैं. यू हैव योर कजन्स, अब आपने कजन्स के साथ भी compete करना है, अब आपने, क्योंकि वो भी आपकी बहन भाइयों की तरह ही होते हैं. Constant comparisons, letting down, ignoring, making fun.
Okay, I'm glad that he's taking therapy now, but truly it is something very heartbreaking कि हमारी जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं कभी कभी हमें उनसे ही ज्यादा तकलीफ मिलती है या धोखा मिलता है as compared to strangers. Do you think parents have a role in sibling rivalry? Definitely, most definitely. This topic, इसके ऊपर मैंने एक पूरी स्लाइड पहले प्रिपेयर की थी कि how the relationship between the parents and the parents themselves, how that impacts sibling rivalry. Parents का बहुत बड़ा हाथ होता है. हम राइवलरी में लोग एंगेज ही बच्चे जो हैं वो राइवलरी करते ही क्यों है उसका वैसे तो कई रीजंस हैं बट द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन इज फॉर पेरेंटल अप्रूवल, फॉर पेरेंटल अफेक्शन. वो जो स्ट्रगल है, वो जो फाइट है बिटवीन दो बहन भाई, वो यूजुअली माँ बाप का प्यार हासिल करने के लिए, उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए बच्चे करते हैं. वो देखते हैं कि बच्चे को फेवर ज्यादा मिल रही है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो वैसे भी अच्छा है, कहना मानता है, ओबीडियंट है, तो वो बच्चा देन द सेकंड वन स्टार्ट्स एक्टिंग आउट रिबेलियसली टू गेन अटेंशन. तो मोस्ट मेजर कॉज जो है सिबलिंग राइवलरी में ये होता है कि to compete for parental love, parental attention. Yes, exactly. Sometimes, Ansa Kamal, sometimes the rivalry is for parents' love and attention. Bilkul, aisa hi hai. I have seen many kids deliberately pretending to be hurt or ill so that they can have their parents' love and attention, which is really sad if you think about it. मतलब अगर आपको अपने माँ बाप की मोहब्बत और शफकत पाने के लिए एक नाटक करना पड़ रहा है कि मैं बीमार हूँ या you have to act in negative ways, then that speaks a lot about the parenting style. कि अगर आपके बच्चे को ये कुछ करना पड़ रहा है बेसिक अफेक्शन पाने के लिए, then there must be something wrong in your parenting and you have to reconsider your ways. Yes, definitely comparison. I'm really glad that everybody is participating because that is the purpose of this webinar. I would like to treat it more like a workshop जिसमें मैं चाहती हूँ आप लोग मुझसे बात करें, मैं अपने भी कुछ personal experiences share करूँगी and hopefully we can learn from that. Yes, parents का बहुत हाथ होता है इसमें. यूजुअली पेरेंट्स आई डोंट थिंक दे इंटेंशनली कंपेयर. कुछ पेरेंट्स करते भी हैं जो इंटेंशनली बच्चों को कंपेयर करते हैं कि अपने बड़े भाई को देखो, वो तो तुमसे ज्यादा पढ़ाई में अच्छा है वैसे, बट कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली भी वो एक कंपटीशन या कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है. होता दरअसल ये है, अभी हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिबलिंग्स, किस तरह के बहन भाई होते हैं फैमिलीज में. तो यूजुअली होता ये है कि जो I forgot what I was saying. हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो बड़ा बहन भाई होता है अगर वो बहुत अच्छा है, जिसको हम कहते हैं द गोल्डन चाइल्ड, वो स्ट्रेट एज लेके आ रहा है, 90% लेके आ रहा है, कहना मानता है, जब वो बहुत फिर जो सेकंड बच्चा होता है वो उसको देख के फील करता है कि अच्छा ये आई वुड नेवर बी एबल टू, मतलब मैं तो इस तरह मैं तो इतना अच्छा कभी कर ही नहीं सकता अपने बड़े बहन भाई की तरह, तो वो ऑपोजिट एक्ट करना शुरू कर देता है. दे स्टार्ट मिसबिहेविंग, दे स्टार्ट बीइंग द रिबेलियस किड. होता फिर ये है कि माँ बाप उसको जाहिर है उसके बुरे काम पे और डांटेंगे, जिससे उसका वो जो बिलीफ है कि मेरे मामा बाबा बड़े वाले से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते, वो रीइंफोर्स हो जाता है कि अच्छा अब मुझे डांट पड़ रही है तो इसका डेफिनेटली अब ये उनका जो, चाहे वो उनकी एजम्पशन ही क्यों ना और वो गलत एजम्पशन हो, वो प्रूव हो जाती है कि अच्छा अब मुझे डांट पड़ रही है तो अब तो डेफिनेटली यही फेवरेट और मैं बिल्कुल भी कोई मुझे प्यार नहीं करता. Which is why these relationships are very sensitive and it's the parents' role to keep their children together, to keep them in harmony. जैसे sibling rivalry, like I was saying, कई forms में आती है. Teasing, बार बार एक दूसरे को छेड़ना, तंग करना. There's a lot of competition for parental attention. फिर माँ बाप कुछ favoritism भी करते हैं और gender roles का भी इसमें काफी हाथ है. ओके, हमारे पास एक चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स है फ्रॉम मोहम्मद जैद सलीम. When I was going through chemotherapy, my siblings taunted me for everything, but when they faced fever and dengue, they never taunt me, but oppositely, they support me at every situation. First of all, I hope you're well now.
Mohammed Zaid, and I wish you really well for your recovery. And definitely that is a very heartbreaking when you are going through something so difficult, और उस टाइम में जब आपको ऐसे मौकों पर सपोर्ट नहीं मिलता फ्रॉम द पीपल जिनसे आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, फिर एट सम पॉइंट वो जब आपको सपोर्ट ऑफर करना शुरू भी कर देते हैं ना, यू डोंट इवन वांट इट एनी मोर. जब कोई इंसान, जब आपकी बहन भाई आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं रहते, यू फिर चाहे वो 100 मरतबा आगे दें, वो फिर हमारे लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती कि अब क्या फायदा, जब जब जरूरत थी तब तो they weren't there for us. तो एक छोटी सी हम आइस ब्रेकर एक्टिविटी करते हैं. आई वांट टू हियर स्टोरीज फ्रॉम यू गाइस. क्या आप लोग अपने बचपन का कोई वाकया सुना? आई थिंक समवन्स माइक इज ऑन. If you could please mute it. Thank you. Okay. किसी का माइक ऑन है, कैन यू प्लीज म्यूट इट? Okay, thank you so much. So for the icebreaker activity, as I was saying, I would love if you guys could share a funny memory from your childhood. कोई बचपन का ऐसा मजेदार सा वाकया जिसमें your siblings, कोई बहन भाइयों के साथ कोई झगड़ा हुआ, कोई conflict हुआ, and how did you guys resolve it? You can either use the chat box or you can unmute your mic, and floor is yours. Wait, let me do it. मैं करती हूँ एक सेकंड. हाँ जी, because मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा. I cannot mute it. जी Miss Aisha Arshad, you can unmute your mic. I think हो गया है. You can continue. Somebody raised their hand, so I guess they wanted to say something. Am I audible to everyone? Yes, you are. Okay, so मैं ये चाहूंगी कि कोई anybody who would want to volunteer कि आप लोग अपना कोई बचपन का ऐसा वाकया सुनाएं, जो कोई बहन भाई के साथ कोई लड़ाई हुई हो, और या कुछ भी मजेदार सा ऐसा वाकया, कोई बचपन का कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो मैं फिर अपना एक पर्सनल वाकया शेयर कर देती हूँ. वैसे तो आई हैव अ वेरी लवली रिलेशनशिप विद माय सिबलिंग्स. आई हैव एन एल्डर सिस्टर, आई हैव अ यंगर ब्रदर. लेकिन बचपन में कभी कभार लड़ाई हो ही जाया करती थी, यूजुअली टॉयज वगैरह पे या किसी भी चीज पे. और अब मेरी आदत क्या होती थी कि आई वाज नॉट समवन हु यूज्ड टू एक्ट आउट. मतलब अब मेरी बहन अगर मुझे, हालांकि मेरी और मेरी बहन में एज डिफरेंस था 5-6 साल का, विच इज नॉट अ लॉट, बट थोड़ा बहुत एज डिफरेंस था, तो वो मुझे बार बार क्या कहते हैं उसे, मुझे छेड़ती थी. शी यूज्ड टू टीज मी अ लॉट एंड आई वुड जस्ट स्टे साइलेंट. आई वुड नेवर से एनीथिंग. और जब मैं बोलती थी तो फिर डांट मुझे पड़ जाती थी कि तुम बड़ी बहन के साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो. हालांकि मैं 4 दफा उसको, तब हम बच्चे थे ऑब्वियसली, वी वर किड्स, वो भी मासूम थी, मैं भी मासूम थी. यस, आई एम डेफिनेटली अ मिडिल चाइल्ड. मैं सेकंड बॉर्न हूँ. और जो मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम होता है, दैट इज, उस पर तो बहुत रिसर्चेस और थ्योरीज हैं. ये एक डिफरेंट ही ब्रीड होती है. तो मैं अब कुछ नहीं कहती थी,
वो मुझे तंग करी जा रही होती थी, मैं अगर जरा सा कुछ उसको कह रही थी कि मत करो, फिर सब कहते थे कि तुम बड़ी बहन से ऐसी बात करियो। तो ये मेरी एक छोटी सी बचपन की मेमोरी है जो मुझे याद है, दैट यूज्ड टू रियली फ्रस्ट्रेट मी, कि जब ये मुझे तंग करी थी तब तो किसी ने नहीं देखा। Okay, somebody has shared their experience. I was young, and one of my classes tells sibling rivalry because of a younger sister. Her parents used to compare her with her sister. She doesn't want brother because she thought brother will grasp attention. ये भी होता है। अच्छा, जो फर्स्ट बॉर्न होता है ना, इवन इन साइकोलॉजी हम जो बर्थ ऑर्डर इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने रिसेंटली इंटर्नशिप की है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, और वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई हैड अ लवली सुपरवाइजर, और वहाँ पे जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते थे उनकी हिस्ट्री टेकिंग में हम बर्थ ऑर्डर लाजमी पूछते थे। आप पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, यंगेस्ट चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड है, बिकॉज दैट रियली शेप्स योर पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है ना, बेसिकली द थिंग इज के वो पहला बच्चा होता है, उसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिली होती है, उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला होता है, उसके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी होती है। what happens is when the second child is born, that attention, वो थोड़ी सी attention जो है वो distribute, divide हो जाती है। अब जाहिर है घर में एक बेबी आया है, माँ उसके साथ बिजी हो जाती है, बड़ा बच्चा थोड़ा neglected फील करता है, वो एक लीडरशिप की पोजीशन में होता है, और उसकी लीडरशिप की पोजीशन से वो गिर जाता है जब सेकेंड बॉर्न आता है, एंड दे फील थ्रेटेंड बाय द सेकेंड बॉर्न। ये एक चीज है जो वैसे तो दिस इज, आई थिंक दिस इज अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स, एक नेचुरल सी चीज है। सारे एक बच्चा है, वो फील कर रहा है कि अब माँ उसको ज्यादा अटेंशन दे रही है दूसरे बच्चे को, तो वो जेलसी फील करता है। बट अगर इस चीज को प्रॉपरली ना डील किया जाए तो फिर ये चीज रिजेंटमेंट, हेट्रेड, बड़े होने तक ये चीज आपके साथ रह जाती है। यहाँ पे कौन कौन जो है फर्स्ट बॉर्न है? यू कैन रेज योर हैंड। ओके, काफी लोग यहाँ पे फर्स्ट बॉर्न भी हैं। फर्स्ट बॉर्न जो होते हैं ना, छोटे होते मैं कहती थी काश मैं बड़ी होती ताकि मैं सब पे हुक्म चलाती और सब मेरी सुनते, बट नाउ दैट आई एम ओल्डर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फर्स्ट बॉर्न पे होती है, ये यूजुअली परफेक्शनिस्ट होते हैं जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं, बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज्यादा, दे आर यूजुअली द गोल्डन चाइल्ड, और इन दे टेंड टू बी परफेक्शनिस्ट। वो उनको होता है कि हम हर चीज में, वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, अगर वो किसी की एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाते देन दे डायरेक्टली एसोसिएट दैट विद देयर सेल्फ वर्थ, कि अच्छा अगर इस बंदे की मैं एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतरा तो आई एम द प्रॉब्लम, मेरी कमी, आई शुड हैव डन बेटर। और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, इनके अंदर जो सेंस ऑफ प्रेशर होता है ना टू सक्सीड, कि हमने सक्सेसफुल होना है, क्योंकि इन सबको इनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। तो वो जो, और यूजुअली फर्स्ट बॉर्न्स आर पेरेंटिफाइड, एक टर्म होती है पेरेंटिफिकेशन, जिसमें यूजुअली उन घरों में जहाँ ढेर सारे बहन भाई होते हैं, जो सबसे बड़ा वाला होता है ना वो अनकॉन्शियसली पेरेंट बन जाता है। पेरेंट्स उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम छोटे बहन भाइयों की माँ जैसी हो या बाप जैसे हो, उनका ख्याल रखो। कहीं ना कहीं उनकी अपनी चाइल्डहुड भी रह जाती है, एंड दे बिकम द पेरेंटिफाइड सिबलिंग, जो पेरेंट की तरह एक्ट करता है, वो आपका ख्याल रखता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। Okay, Miss Nida Ahmed has shared, my sister is elder to me by 14 years. Oh, काफी age gap है। Age gaps में usually ये होता है कि, okay, wait, let me read the rest of the response. I'm the youngest. We don't have anyone in between. So she was more like a mother to me. Yes, definitely. वो definitely आपका age gap भी ज्यादा था, तो she became sort of your parent. और so she was more like a, and still is. There was never, हाँ जी, एज गैप्स में ये होता है, एज गैप का भी राइवलरी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जहाँ पे सबसे ज्यादा राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी और कंपटीशन होता है जब एज गैप कम हो, 2 साल का फर्क है, 3 साल का फर्क है, उसमें सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और कंपटीशन होता है, लेकिन दोस्ती भी उसमें ज्यादा होती है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इमोशनल इंटीमेसी ज्यादा है अगर गैप थोड़ा है, बट लड़ाइयाँ भी ज्यादा है। एज गैप बहुत ज्यादा है तो लड़ाइयाँ नहीं है, बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है, राइवलरी नहीं है, रिलेशनशिप हेल्दी है, बट उस तरह से इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती। वो जो होता है बेस्ट फ्रेंड्स वाला सिस्टम के, बिल्कुल मेरा बहन भाई मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, आई कैन टेल देम एनीथिंग, वो चीज नहीं होती। लेकिन लड़ाइयाँ भी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस इन साइकोलॉजी, जो मिडिल गैप्स होते हैं ना, जैसे
5 साल, 6 साल, 4 साल, दोज आर आइडियल बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल इंटीमेसी भी होती है और ज्यादा रिलेशनशिप में कंपटीशन भी नहीं होता. ओके, somebody has shared that I don't like being the first child. और एक और बड़ी मजे की बात, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट बॉर्न पर होते हैं बिकॉज पेरेंट्स भी तो पहली दफा पेरेंट्स बने होते हैं, डेफिनेटली दे मेक मिस्टेक्स. तो वो अपनी जो प्रैक्टिस उनकी हो रही होती है ना बीइंग अ पेरेंट, वो फर्स्ट टाइम पर हो जाती है. पापड़ा वाला आया जे. Anyways, so that is something that happens a lot. कि जो I'm the youngest child in my family with a big age gap. Now everyone is married and I'm the only one with my mother and all of my older siblings just me. Acha, you're the youngest, okay. Yes, youngest children में आपने जो problem share की है, I'm not the youngest but I have my brother and I have seen youngest children suffer from this. ये चीज डेफिनेटली होती है कि छोटे बहन भाइयों की ओपिनियंस उस तरह से नहीं बड़े जो बहन भाई होते हैं वो उनको रिजेक्ट करते हैं, उनके ओपिनियंस को सीरियसली नहीं लेते. एंड यंगेस्ट चाइल्ड भी दो तरह के होते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. ईदर दे आर एक्सट्रीमली पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड, जो कि कॉमन एक कंसेप्शन है हमारा कि यूजुअली ऐसे ही होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो ऐसे होते हैं कि बहुत स्पॉइल्ड होते हैं या पैम्पर्ड होते हैं. मैंने बहुत से ऐसे यंगेस्ट चाइल्ड भी देखे हैं कि वो आर वेरी सॉफ्ट, जेंटल एंड मैच्योर. दे आर फार मोर मैच्योर देन देयर एल्डर सिबलिंग्स बिकॉज दे फेस लोनलीनेस थोड़ी बहुत, क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं. और स्पेशली अगर काफी टाइम बाद, जैसे मेरे भाई का ये केस था, ही वाज बोर्न 10 years आफ्टर मी, तो वो कहीं ना कहीं they learn to deal with things themselves, which is why they grow up to be more emotionally intelligent, more mature. Okay, Mursaleen has shared, my brother is 2 years older than me. We were friends when younger. लेकिन अब वो फील कराते हैं कि he is the elder one and there must be a respect boundary. अच्छा, that is not necessarily a bad thing. Boundaries are good as long as you have a good relationship. थोड़ी बहुत boundaries enforce करना, I think that is healthy. Okay, and Eliza shared, I'm second oldest to 4. Okay, so you're the second born amongst 4 siblings. And your older brother is the only son. He gets coddled a lot. He's irresponsible as a result of that coddling. So even though I'm the second born, I have a lot of traits of the firstborn, unfortunately. The plus side, though, is that I get to boss everyone around. That was so funny. Okay, so yeah, definitely. Achha, this is a rare case. Usually first, but then again, जैसा कि मैंने अपनी पिछली slide में भी mention एक चीज की हुई थी, let me bring that up. Gender roles, definitely. Gender roles तो वैसे ही हमारे माशरे में बहुत prominent हैं और उसका effect siblings पर भी आता है. भाइयों को ज्यादा पेरेंट्स, बेटों को ज्यादा फेवर करते हैं पेरेंट्स, बेटियों को उस तरह से नहीं करते. या कुछ घरों में बेटियों को बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला जाता है और लड़कों को बिल्कुल अफेक्शन नहीं दी जाती, उनको फिजिकली प्यार नहीं दिया जाता, हग नहीं किया जाता, बिकॉज तुम लड़के हो, बी अ मैन, और अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करो. तो दैट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन. Okay, so let's talk about the hidden trauma behind rivalry when conflict runs deeper. तो इसके ऑब्वियसली काफी इफेक्ट्स हैं जो सिबलिंग राइवलरी और कंपटीशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम. कॉन्स्टेंटली आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपके साथ लोग compete कर रहे हैं, आपके बहन भाई compete कर रहे हैं और आपको एहसास कमतरी का शिकार भी होते हैं हम. तो उससे हमारी सेल्फ एस्टीम डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट होती है. एंजाइटी, डिप्रेशन, दीज थिंग्स आर वेरी, मतलब जो सिबलिंग राइवलरी होती है वो दे कैन मैनिफेस्ट एज दीज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. फिर उसके बाद पेरेंटल फेवरेटिज्म. पेरेंट्स जो हैं दे पिक अ फेवरेट और फिर वो जो फर्क करना शुरू कर देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हेट्रेड, जेलसी अपने. फिर ये होता है कि आपका भाई बहन भाई चाहे अच्छा भी क्यों ना हो, what happens is कि
आपने उसके बारे में एक ऐसा इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया होता है, बिकॉज ही इज द फेवरेट वन या शी इज द फेवरेट वन, यू स्टार्ट हेटिंग देम एंड देन यू स्टार्ट टू फाइंड रीजंस टू हेट देम। वो कुछ अच्छा भी करेंगे, आपको उसमें बुराई नजर आएगी कि ये तो नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, अपने ये मामा बाबा के सामने एक्टिंग करता है, ये फेक करता है। और वन, अगर हम अपने थॉट्स के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होके सोचें, then this we can actually deal with these cognitive biases. Cognitive bias हमारी सोच में कोई एरर होता है या कोई फॉल्ट होती है, an irrational way of thinking। अगर हम 2 मिनट बैठ के अपने अपने थॉट्स को चैलेंज करें कि क्या पता वो ना कर रहा हो, एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक दैट पर्सन आई एम ट्राइंग टू फाइंड नेगेटिव इवन इन द पॉजिटिव। अगर वी इफ वी ट्राई टू बैटल विद आवर थॉट्स, हम अपने थॉट्स को चैलेंज करना जब शुरू करते हैं, तो हमारे ये बाइसेस काफी रिड्यूस होते हैं, और जिससे हमारे रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होते हैं। रिलेशनशिप्स में, चाहे वो सिबलिंग रिलेशनशिप्स हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, द मेन प्रॉब्लम इज कि हम एजम्पशंस बहुत बनाते हैं, बिकॉज हमारे माशरे में कम्युनिकेट करने की किसी को आदत है नहीं। यहाँ पे वी डोंट इवन हैव अ कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन, वी डोंट कम्युनिकेट आवर प्रॉब्लम्स, वी डोंट से कि हमें तुम्हारी ये बात बुरी लगी, तुम प्लीज आइंदा ये मत करना। what we do is we just think about it कि अच्छा मेरे बहन भाई ने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैंने इससे बात नहीं करनी, या अब ये तो है ही बुरा। when we actually start communicating and discussing those issues, most of the time, not always, कभी कभी वाकई अगला इंसान नहीं आपके साथ सिंसेयर होता, लेकिन इफ वी कम्युनिकेट, हमारे फिर कितने ऐसे जो हमने थॉट्स जहन में रखी होती हैं कि इसका ये मतलब होगा, इसने जरूर इस नियत से किया होगा, वो फिर चैलेंज हो जाती है। वी लाइक व्हाट, सो दिस वाज द रीजन यू वर डूइंग दिस, आई थॉट इट वाज लाइक दिस, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग, सिबलिंग वायलेंस बच्चों में ही ज्यादा होता है, वैसे तो बड़े भी लड़ते हैं फिजिकली, लेकिन बच्चों में ये चीज ज्यादा होती है कि एक दूसरे को मारना, हाथ उठाना, विच इज वेरी नॉर्मलाइज, कि बच्चे हैं, शरारत कर रहे हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट वो शरारत कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड नॉर्मलाइज। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार पीट रहा है या बार बार पोक कर रहा है, वो दोनों खेल रहे हैं, वो उनका प्यार करने का तरीका ही ऐसा है, ये बातें करके हम फिर उस चीज को अनइंटेंशनली प्रमोट कर रहे हैं, encourage कर रहे हैं। द चाइल्ड विल नॉट लर्न बाउंड्रीज, द सिबलिंग्स के बीच में बाउंड्रीज डेवलप नहीं होंगी, वो उनके जो दिल में आएगा वो एक दूसरे को कहेंगे, गुस्सा आएगा तो मारेंगे। सो जो ये नॉर्मलाइज्ड सिबलिंग वायलेंस होता है, कुछ, नॉट ऑलवेज बट इन फ्यू केसेस, इन रेयर केसेस, ये फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जो है ये बड़े होकर भी काफी एग्रेसिव और फिजिकली अब्यूसिव हो सकते हैं, और इससे आपके डेफिनेटली मैरिटल रिलेशनशिप्स भी बहुत इफेक्ट होते हैं। When you're obviously in competition with your siblings all the time, when you feel like you need to earn your parents' love, तो that affects your relationships। फिर आप अपने future relationships में भी, when you get married, you constantly seek the validation of the other person, या आप कभी कभी अपने पार्टनर के साथ भी, कंपेटिटिवनेस की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि अपने पार्टनर के साथ भी, जिसके साथ आपने एक पार्टनरशिप में रहना है, उसके साथ भी हम compete करना शुरू कर देते हैं। And another thing is emotional neglect. अच्छा, जो sibling rivalry है, there is a lot of biological evidence behind it as well। अगर हम evolutionary psychology की बात करें, तो ये जो एक natural, even अगर आपके siblings के साथ आपका relationship बहुत अच्छा है, जैसे मेरा अपने siblings के साथ relationship बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं unconsciously एक राइवलरी या कंपटीशन होता है विच इज एक्चुअली एम्बेडेड इन अस। ये हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल चीज है अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी। जस्ट अ फन फैक्ट आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन कि इट्स नॉट नेसेसरली बैड राइवलरी, टू सम एक्सटेंट हेल्दी राइवलरी भी हो सकती है, एक हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है विद योर सिबलिंग्स, which can actually be really helpful because then it makes you strive for the better। कंपटीशन में आके हम खुद को सेल्फ इम्प्रूव करते हैं, खुद को अच्छा बेहतर बनाते हैं। सो राइवलरी कैन आल्सो बी हेल्दी इन सम वेज।
Okay, Larib Fatma shared same reason for my hatred towards my sister, even though हम दो sisters ही हैं, but my mother always supports her in front of me. Definitely ये चीज भी अच्छा पेरेंट्स जो है we think if fairness and sameness is the same thing. अगर हम अपने बच्चों को सेम ट्रीट कर रहे हैं तो हम उनको फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, which is not true. हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स होती हैं, कुछ की ज्यादा कुछ की कम और डिफरेंट होती हैं. फेयरनेस इज व्हेन द पेरेंट्स ट्रीट मीट द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, जितनी जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग. अगर वो सबको सेम ट्रीट करें दैट इज नॉट नेसेसरली फेयर. कुछ बच्चों को ज्यादा चाहिए होती है वैलिडेशन, कुछ ज्यादा अफेक्शन चाहिए होती है, तो आप उनको ज्यादा दें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फेयरनेस इज नॉट नेसेसरली सेमनेस. And that happens a lot, unfortunately. कि हम समझते हैं हमने सेम ट्रीट किया बच्चों को तो we have done a fair job. Okay. So next thing I would like to talk about is sorry, I was discussing a theory जो कि बीच में रह गई, Darwin's theory कि basically parents की जो resources होते हैं वो limited होते हैं. चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल रिसोर्सेज हों. सो ये अल्लाह की तरफ से कुदरती चीज हमारे अंदर होती है कि वी व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ लव या रिसोर्सेज, यानी जब आपके पास कम रिसोर्सेज हैं तो यू हैव टू become competitive to fight for it, to fight for the love of parents, to fight for the resources, to fight for what they can provide for you. तो इसका थोड़ा सा बायोलॉजिकल भी पर्सपेक्टिव है कि इसलिए सिबलिंग राइवलरी कॉमन है बिकॉज वी हैव टू फाइट फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव. और एक और बड़ी मजे की चीज हमारी फैमिलीज में होती है कि रोल्स जो है वो हम लोग कर लेते हैं इंटरनलाइज. इंटरनलाइज करने का मतलब ये है कि फैमिली हमें रोल असाइन करती है. ये अच्छा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, ये कहना मानता है, ये कहना नहीं मानता. वो जो रोल्स हमने हम जब कमेंट्स इतने सुनते हैं हम उनको इंटरनलाइज कर लेते हैं. मतलब कि अच्छा मैं बुरा बच्चा हूं तो मैं अब बुरा ही हूं, अब मैं बुरा ही बनूंगा. जरूरी नहीं है कि ये चीज वो बच्चा कॉन्शियसली करे कि अब मुझे बुरा कर मैं बुरा ही बनूंगा. वो अनकॉन्शियसली आप एक बच्चे को ये कह रहे हो कि तुम ये हो तो वो वही बनेगा इवेंचुअली. that is called internalizing those roles. जब हम लोग एक लेबल लगा लेते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं एक बच्चे पे कि ये है और ये है, वो फिर वही बन जाता है. हम फिर सारी जिंदगी उस चीज से निकल ही नहीं पाते कि अब हमें ये रोल असाइन किया हुआ है, अब हम यही हैं. what it does is it restricts our self expression. वो फिर जो गुड चाइल्ड है वो सारी जिंदगी यही सोचेगा कि मैं तो गुड चाइल्ड हूँ, अगर मैंने कुछ बुरा किया तो मैं गुड चाइल्ड नहीं रहूंगा, या उसके अंदर बहुत ज्यादा शेम आ जाएगी. इसलिए तो वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं बिकॉज उनको पता है कि मैं दिमाग में आई एम अ गुड चाइल्ड, आई हैव टू बिहेव लाइक अ गुड चाइल्ड. मीनवाइल जो बुरा बच्चा होता है वो अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करता, वो बेहतर बनने की कोशिश ही नहीं करता बिकॉज ही नोज कि आई एम द बैड चाइल्ड, व्हिच इज आल्सो समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट. और हम तो डेफिनेटली पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे. कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारा फैमिली साइज जो है, वी हैव यूजुअली यहाँ पाकिस्तान में जॉइंट फैमिलीज होती हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा, सिबलिंग्स के साथ साथ कजन्स भी हैं साथ, उनके साथ भी कंपटीशन है. फिर जेंडर एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं. सिबलिंग्स बहन भाइयों में मेल फीमेल when the siblings are of opposite sex, तो फिर तो और भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ जो मुझे लगता है होती हैं, जो मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि भाई को ज्यादा, भाई 10 बजे तक बाहर रह रहा है तो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा. अगर बहन थोड़ी लेट हो गई है तो उसको डांट पड़ रही है, फिर उसको गुस्सा चढ़ेगा कि भाई को क्यों नहीं डांट पड़ती, मुझे क्यों डांट पड़ती है इस मामले में. तो जो हमारी जेंडर एक्सपेक्टेशंस, जेंडर रोल्स जो हैं, इवन तो पेरेंट्स की इंटेंशंस अच्छी होती हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर डॉटर्स, दे आर ट्राइंग टू बी प्रोटेक्टेड, दे आर बीइंग प्रोटेक्टिव ऑफ देम, लेकिन वो फिर चीज हर दफा बच्चे पॉजिटिवली नहीं ले पाते, या दे डू फील इनसिक्योर कि हमें क्यों डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ आवर जेंडर. फिर एक्सटेंडेड फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस होता है. बहुत से
जो थॉट्स, ये जो कंपटीशन की थॉट्स है ना कि ये तुम्हारा बहन भाई नहीं, ये तुम्हारे कंपेटिटर है, ये हमारे माँ बाप ही नहीं जरूरी कि हमारे जहन में डालें, ये हमारे जो घर में और लोग रह रहे होते हैं वो भी डाल देते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है, मेहमानों के घर जाएंगे या मेहमान हमारे घर आएंगे, वो फिर आके बोलेंगे कि अच्छा इसके तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो तुम्हारे नहीं आए बेटे अपने भाई की तरह, तुम्हारा भाई तो ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट था ये वो। तो एक्सटेंडेड फैमिली भी हमारी जो होती है, दे ऑल्सो प्ले अ ह्यूज रोल इन फ्यूलिंग दिस सॉर्ट ऑफ फायर इन रिलेशनशिप्स. Parents are there for their physical needs, but they ignore their child's emotional needs. Definitely. हमें as in our culture, we think if we provide for our children, हम उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रहने की जगह सब दे रहे हैं, तो we have done our job. लेकिन एक बात डेफिनेट है कि इवन वो फैमिलीज जहाँ पे बेशक माँ बाप की इतनी अर्निंग नहीं है, इतने घर में पैसे नहीं है, लेकिन they have a lot of emotional support and love and validation from their parents. They are far happier than those who are extremely rich, have a lot of money, but they don't have, their parents are neglectful. So that definitely proves that emotional needs matter so much more. The thing is that, okay, Miss Ansa Amal has shared, the thing is that when the other siblings don't listen to our parents and they become rebellious, when we saw that, we think that they're hurting our parents as well. If we as well don't listen to our parents, even if their words hurt us, we don't disobey or complain because we feel guilty towards our parents. We just accept things as it is. That is actually very relatable. Ye bahut, I have seen this happen a lot. इसके अलावा अगर कोई और शेयर कुछ करना चाहता है, प्लीज डू. I would love to hear more from you guys. ये बहुत इंटरेस्टिंग अब आ गई है बात. जो मैंने कहा था, हर फैमिली में 4 तरह के सिबलिंग्स होते हैं. देयर इज द गोल्डन चाइल्ड. ये वो बच्चा है जिसको सारी फेवर्स मिल रही हैं, जिसकी हर बात मानी जाती है, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर कि हमने सक्सेसफुल होना है, हमने एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है. ये जो बच्चे होते हैं ना, इनमें एंजाइटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड दे हैव अ वेरी फ्रैजाइल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. मतलब इनकी सेल्फ वर्थ, अगर इनके नंबर थोड़े कम आ गए ना, ए नहीं आया बी आ गए, मैं नालायक हूँ, आई एम अ फेलियर. Because they're the golden child, they expect a lot from themselves. फिर आते हैं ये usually golden child जो है, they are usually the first born. Scapegoat ये second born होता है. The middle child या the second born, ये वो है जिसको सब यूज करते हैं एज अ स्केपगोट. यानी कि जो फैमिली में, घर में लड़ाई हुई है, उसका गुस्सा इस पे उतर गया, कोई चीज गलत हुई है, उसका ब्लेम इस बच्चे को दिया जाएगा. बेसिकली होता ये है कि हम डीपर फैमिली इश्यूज, डीपर प्रॉब्लम्स जो हमारी फैमिली में चल रही होती हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय इस बच्चे को इस्तेमाल किया जाता है कि इस पर डाल दो सारा कुछ, इसलिए इसको स्केपगोट कहते हैं. इसलिए ये बच्चा थोड़ा सा बागी होता है, गुस्से का तेज होता है, और इसकी इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती. जी, somebody raised their hand. Zainab, yes please. Zainab, do you want to share something, or can I continue? Or you can use the chat box if you want. Okay, so I will be moving forward. And the third one is the peacemaker. अच्छा, middle child भी peacemaker भी होता है usually. They're the one जो माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई है तो उनको होता है कि उसको फौरन ठीक कराओ. बड़े और छोटे में लड़ाई हुई है तो उसको ठीक कराने में लग जाते हैं. ये अपनी फीलिंग्स क्योंकि बहुत सप्रेस करते हैं दूसरों के लिए, ताकि घर में कोई मसला ना हो, कोई लड़ाई ना हो मेरे बोलने की वजह से, अपनी इमोशनल नीड्स सप्रेस कर लेते हैं, और उसके बाद उसको बजाय अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं. दे बिकम द पीस मेकर. जरा लड़ाई हो, कुछ हो, इनको टेंशन होती है कि क्यों लड़ रहे हैं सब, मैं इनसे, आप बात करें एक दूसरे से, आप ऐसे करें. ये बच्चे फिर
they cannot handle conflict. Even when they grow up, कोई लड़ाई हो कुछ हो, they want foreign results के हमने फटाफट से लड़ाई को ठीक करना है, बस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए. Then comes the lost child, which is usually the youngest one, जो ज्यादातर quiet होता है, थोड़ा socially withdrawn होता है, थोड़ा neglected होता है, और ये बच्चा कहीं ना कहीं invisible रह जाता है, और ये usually youngest वालों के साथ ज्यादा होता है. अब अगर हम coping strategies की बात करें, yes please, somebody raised their hand. So I just want to know, what about the pampered child? I don't see कि वो इस किसी कैटेगरी में फॉल करता है. अगर आप पीछे वाली स्लाइड वापस आए, like there's a golden child, the scapegoat, the peacemaker, the lost child. Like what about the pampered child? Usually the youngest बच्चे जो होते हैं वो mostly वही pampered होते हैं, या वो बच्चे जो कि सिर्फ अकेले हैं, like जिनके कोई siblings नहीं हैं. Yes, definitely. Basically, these are the 4 archetypes जो मैंने यहाँ share की हैं according to psychology. जो pampered child है, that is also often the youngest child, जो कि जिसको सबसे ज़्यादा spoil किया जाता है, सबसे ज़्यादा pamper किया जाता है, और वो usually होता है, ये जो बच्चे होते हैं, actually there was a case in my family as well. The pampered child is the lost child actually. In most cases, even though वो pampered है, हमें लगता है कि अगर वो pampered है, spoiled है, वो जो कि कुछ cases में होता भी कि वो बिगड़ जाते हैं वो बच्चे, but what happens is इससे भी ज़्यादा बड़ा damage जो उनकी personality पे होता है कि वो उनको अपनी needs खुद पूरी करनी नहीं आती. They are constantly depending on other people. That's why the pampered kids are also in some way the lost child. I had someone in my family, a distant relative, who was extremely pampered and spoiled. And when their parents passed away, बहन भाइयों ने उनको उस तरह से नहीं पूछा, and he was 30 years old, but he acted like a 20-year-old boy because he was so pampered and loved कि वो कुछ job नहीं करते थे, कुछ करते नहीं थे, शादी भी नहीं कर रहे थे. Everybody in the family was worried about them. He was the epitome of the lost child. Because हर सारी जिंदगी माँ ने हर तरह की need पूरी की, emotional need, कि वो उसने खुद उस इंसान ने उस शख्स ने इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीखी कि मैंने अपनी इमोशनल नीड्स को कैसे फुलफिल करना है, खुद को सेल्फ सूद कैसे करना है. एंड समहाउ ही बिकेम द लॉस्ट चाइल्ड. इसको उनको ना उनके बहन भाइयों ने उनके माँ बाप के जाने के बाद पूछा, एंड ही वाज जस्ट डूइंग नथिंग विद हिज लाइफ एंड कंप्लीटली लॉस्ट. सो ये पैम्पर्ड किड्स ही होते हैं जो यूजुअली बड़े होके दे बिकम द लॉस्ट चिल्ड्रन. I hope that answers your question. If it doesn't, Yes, that's fine. You can ask me again. It makes sense. Thank you. You're welcome. अगर हम coping strategies की बात करें according to these specific roles, जो पीस मेकर है, जो हर किसी को जोड़ने में लगा हुआ है, अपनी पर्सनल नीड सप्रेस करके, you have to remind yourself कि not every conflict is your responsibility. हर चीज को फिक्स करना, it's a good thing कि सवाब का भी काम है कि आप लड़ाई खत्म करवा रहे हैं, but not at the cost. जी. I think the peacemaker child is more like a people pleaser. Yes, definitely. ऐसा ही है, बिल्कुल, I agree. They are the people pleasers. उनको होता है कि सब हमसे खुश रहें, हम अपनी मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस करके बस दूसरों को खुश रखें, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, बट दे जस्ट वांट पीस इन द हाउस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच पीपल टू, ये बातें जो मैं कर रही हूँ, ये मोस्टली बातें हम सबको पता है, वी नो अबाउट दिस. हम शायद आप लोगों में से कुछ लोग सुन के कह रहे हो कि हाँ ये तो एक कॉमन सी बात है, वी नो दिस, बट वी डोंट एक्चुअली प्रैक्टिस दोज. हम अपने आप को वो उस तरह से कहते हैं, हमें पता है कि हाँ, हमें लफ्जी मानों में तो पता है कि हमने बाउंड्री सेट करनी है, सेल्फ केयर करनी है, बट वी डोंट एक्चुअली से दिस टू आवरसेल्व्स कि नो. For example, if I say to myself, no Fatma, this is not your problem, this is not your thing to fix, let things be the way they are, तो कभी कभी खुद को फिजिकली कहना पड़ता है
in order to enforce those things. The peacemaker needs to tell themselves कि हर लड़ाई को जोड़ना, हर मसले को सुलझाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, not always. And they must set boundaries. They must, if they feel like कि उनको anxiety हो रही है कि conflict की वजह से, वो अपने आप को दूर कर लें physically, उस कहीं जहां लड़ाई हो रही है उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले जाएं to avoid interfering. The second is the scapegoat, जिसको usually family problems के लिए blame किया जाता है. ये लोग external validation फिर बहुत seek करते हैं. घर से जब उनको वैलिडेशन नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, वो बाहर से सीख करते हैं, फ्रेंड से, क्लासमेट से, रोमांटिक पार्टनर से. सो the thing that they need to work on is building their sense of self-worth and constantly challenging this belief that they are not the bad child, or they are not to be blamed for everything. उनको फिर self love practice करने की जरूरत होती है. And as for the golden child, इनके अंदर जैसे कि मैंने कहा fear of failure बहुत strong होता है. तो it's all about embracing your imperfections. छोटी मोटी गलतियां करने से आप किसी से कम नहीं हो जाएंगे. And you will, अगर आप एक दो दफा फेल होते भी हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. That does not mean कि you are a failure. So we have to consciously remind ourselves these things. Yes, exactly. We see these things in families, but we don't do. अगर हमारे बड़ों ने नहीं किया तो हम क्यों ना करें? Let's break the generational cycle. जो चीज एक सदियों से चलती आ रही है, family to family, generation by generation. Let's be the ones who stop it. हमारे बच्चे फ्यूचर में या हम अपने बहन भाइयों के साथ वो चीज ना करें. That will be the biggest redemption for all the things we have suffered from. कि हम आगे उसको ट्रांसफर ना करें. इससे बड़ी पीस हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकती. When we don't do the things that were done to us. उसके अलावा जो rivalry की जहां तक बात आती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगी. Especially if you're someone जिसको ये फील होता है कि आपकी कोई सुनता नहीं है घर में, कोई आपको सुनने वाला नहीं है. What you can do is you can do shared narrative sharing. अपने बहन भाई के साथ बैठें, उनको कहें कि आज तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ आज तुमने दिन में क्या किया, what happened. वो आपको एक बात बताएगा अपने दिन के बारे में, फिर आप उसको बताओगे कि अच्छा और मेरे साथ आज ये हुआ, मेरी सुबह ऐसी, अब तुम बताओ तुमने शाम को क्या किया. So what you're doing is it sounds boring, but you're sharing information. You're sharing a narrative जिससे आपके बीच में bond बन सकता है, intimacy increase हो सकती है, and you both get a chance to express yourself. Okay, somebody has shared. Sometimes when we don't get emotional support from our parents, we get attached to our older siblings. Definitely. जब हमारा कोई दूसरा बहन भाई हमसे ज़्यादा close हो जाता है with the same older sibling, then we start competing with them too. ये भी definitely कोई बात जो बड़े वाला है वो parentified है. और I think it's very important to realize the session is coming towards an end. There's only 5 minutes left, so I'll wrap this up quick. But I would really like to comment on this. कि it is very important to हम जो अपने दिमाग में ideals बना लेते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, या हमने अपने माँ बाप को, वैसे तो ये टॉपिक सिबलिंग राइवलरी के बारे में, बट पेरेंट्स का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दैट्स व्हाई आई एम आल्सो डिस्कसिंग दैट साइड बाय साइड. हम पेरेंट्स को देखते हैं एज पेरेंट्स, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे हीरोज हैं, ये इंसान नहीं, हमारे माँ बाप हैं. वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स दे आर ह्यूमंस. इसी तरह आपके जो बड़े बहन भाई हैं जिन्होंने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किए, आपको ख्याल रखे, दे आर आल्सो ह्यूमंस. दे आर फ्लॉड, दे आर इम्परफेक्ट, दे आर जस्ट ह्यूमंस. तो कभी कभी हम हर रिश्ते को बहुत इस तरह देखते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है. If I say ये मेरी बहन का नाम आयशा है, if I say ये मेरी बहन है, कभी कभी ऐसे भी सोचे ये आयशा है. She is also someone, she is a lot more than just my sister. मेरी बहन होने के अलावा उसकी और भी कई रोल्स हैं जिंदगी में. कितनी एक जिंदगी है उसकी. She is not my sister. कभी कभी ये सोचना चाहिए ये आयशा है, ये मेरा भाई नहीं, ये हसन है. ये इस तरह जब हम सोचना शुरू करते हैं, हमें लोगों से गिले शिकवे भी कम होते हैं,
relationships भी जरा कम खराब होते हैं. तो healthy boundaries set करना is really important. If somebody is misbehaving with you, if your sibling is constantly teasing you, just आप उनको firmly but नरम अल्फाज में कह दें कि मुझे ये चीज नहीं पसंद, मुझसे इस टोन में प्लीज बात करें. आप मुझसे आराम से बात कर लें लेकिन इस टोन में बात ना करें. And usually what happens is like इतनी lack of communication हमारी society में कि जब हम clearly किसी को अपनी need बताते हैं ना कि I don't appreciate your tone, please use a different tone with me, वो shock हो जाता है कि ओ अच्छा, क्योंकि उसको कभी किसी ने इस तरह तरीके से बताया ही नहीं. We always start arguing या fighting back, वो हमसे लड़ रहा है हम भी लड़ना शुरू कर देंगे. अगर हम उसको ऐसे प्यार से stop कर दें उधर, यूजुअली जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, वो अगला बंदा खुद हैरान हो जाता है क्योंकि कभी उसको किसी ने इस तरह कहा नहीं, फिर वो शर्मिंदा हो जाता है कि ओ अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी टोन ऐसी हो रही है. सो addressing issues and establishing boundaries is important. Last but not the least, I think the biggest solution to any problem is forgiveness. Not for them. You should not forgive your siblings because they deserve forgiveness. They don't always deserve forgiveness, but because for your own self, for your own mental peace. कब तक आप एक इंसान से गिला शिकवा करते रहेंगे, खुद ही अंदर अपना दिल जलाते रहेंगे? Just forgive them, see them as someone who is human, like I said before. और अपनी mental peace के लिए उनको forgive करें. And apart from that, it is मेरी जो last, one second. जो मेरी लास्ट स्लाइड है उसके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी इंडिविजुअल सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें. Be your own person. You are not just a mother, father, sister, brother. You are your own self. अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करें, अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनालिटी बनाया आउटसाइड ऑफ योर रिलेशनशिप्स. इट इज आल्सो अनदर प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी. हम अपने रोल्स में इतना गुम हो जाते हैं कि वी फॉरगेट टू डिफाइन आवरसेल्व्स एज सेपरेट फ्रॉम आवर रिलेशनशिप्स. तो अगर हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग रखेंगे, अपनी अलग हॉबीज बनाएंगे, अपने बहन भाइयों से अलग, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करेंगे अपने बहन भाइयों से सेपरेट, तो you will feel a lot freer. And that is all for today's session. And I really hope you guys enjoyed or learned something from it. This was just supposed to be a talk between all of us, so we can share. It was just supposed to be a safe space जहाँ पे हम अपने experiences share कर सकें. और मुझे लगता है 50% बात जो है वो किसी को बताने से ही सुलझ जाती है. So that will be all from my side. If anybody has any questions, feel free to ask. Thank you so much, Zunash. I hope I'm pronouncing your name correctly. I'm really sorry if I'm not. Thank you so much for your kind words, everyone. अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो वो पूछ सकते हैं. Thank you so much, Fatma, for talking about this thing so beautifully. The way you have actually shared a lot of insights, जिसकी I think हमें ज़रूरत भी है, because sibling rivalry को एक तो recognize करना is entirely something else, but उसके बारे में बात करना और फिर उसको ठीक करने की tips देना, that is the most important thing. That fine, sibling rivalry exists, ठीक है, but what to do about it and why does it exist? So I think today's topic has बड़ा clearly आपने इस चीज़ को explain किया, और हमारे जितने भी participants थे, I think they have also enjoyed it, and I absolutely love the tips and how you shared your own examples and how you have asked your own, how you have shared your own examples and also asked the participants to share theirs. ये जो safe space आपने provide किया, I think that was much needed. And obviously sibling rivalry is something normal, but ये है कि जो little competition होता है, that's healthy, like you said कि it is healthy, it helps us to motivate ourselves, but it also important to know when that healthy competition is becoming a toxic
toxic patterns. And अगर यहाँ पे if we don't have any parent with us today, but हमारे पास ऐसे participants हैं जिनकी अपने बहन भाइयों के साथ rivalry चल रही है, तो I think you can utilize this talk and maybe share it with your siblings or your parents. उनको psycho educate करने की बहुत ज़रूरत है. वही बात कि parents का role है, लेकिन unfortunately they are not aware about it. उनको वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे आपस में लड़े. So whatever they are doing, the intention is always to spread the love. लेकिन फिर भी अगर वो toxic उसमें आ रहा है, तो we need to educate them. It's our responsibility कि हम उनको भी कुछ educate करें. And on that note, we're going to end our session. Thank you so much, Fatma, for your time, for being with us today. Thank you to all the participants. I will be opening up WhatsApp group chat. वहाँ पे you can share your feedback. You can share if you have any more question. किसी ने कुछ और example share करनी है. So the space is open. It will be open. And once again, Fatma, it was our honor to have you with us. And inshallah, I'm looking forward to have more collaborations. Stay tuned with us because we have our next workshop coming up on Friday, I think. And Aisha Arshad wants to say something. Ji, Aisha, please go ahead. Aisha, आप कुछ कहना चाहती हैं? You have raised your hand. Before I turn it Oh, off. I think it's by mistake. All right, it's by mistake. No problem. Once again, thank you and Allah Hafiz. Thank you Take so care much. of yourself. Thank you everyone for joining. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Ali.